आइए क्लोज और इसकी अक़साम को एक ऐसी दिलचस्प कहानी की शक्ल में समझते हैं कि तुलबा इसे कभी नहीं भूलेंगे। कहानी ग्रामर का घर, द ग्रामर हाउस। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर है जिसका नाम जुमला, सेंटेंस है। There's a big beautiful house named Sentence. इस घर में दो अहम खानदान रहते हैं। Two important families live in this house. 1. Independent Clause का खानदान, the Independent Clause family। ये खानदान घर के मालिक का है जिनका नाम Independent Clause है। This family belongs to the owner of the house, named Independent Clause. ये बहुत खुद मुख्तार और बाइख्तियार हैं। ये अकेले भी अपना काम चला सकते हैं। उन्हें किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं होती। They are very independent and powerful. They can manage their work alone and don't need anyone's help. ये जब भी कोई बात कहते हैं तो उनकी बात मुकम्मल और वाज़ेह होती है। Whenever they say something, their statement is complete and clear. मिसाल, मैं खेल रहा हूँ। Example, I am playing. इसमें मैं, सब्जेक्ट और खेल रहा हूँ, वर्ब है। बात मुकम्मल है। It has I, subject, and am playing, verb. The thought is complete. 2. Dependent clause का खानदान, the dependent clause family। इसी घर में दूसरा खानदान dependent clause का है। In the same house lives the second family, the dependent clause। ये खानदान खुद मुख्तार नहीं है। उन्हें हमेशा independent clause के खानदान की मदद की ज़रूरत पड़ती है। This family is not independent. They always need the help of the independent clause family. ये जब भी अकेले कोई बात करते हैं तो वो अधूरी और बेमाना लगती है। Whenever they speak alone, their statement feels incomplete and meaningless. मिसाल, जब मैं खेल रहा था। Example, when I was playing। ये बात अधूरी लगती है। इसलिए इस जुमले को मुकम्मल होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत है। This statement feels incomplete. Therefore, it needs an independent clause to be complete. Dependent clause के 3 बच्चे। The dependent clause is 3 children. Dependent clause के 3 बच्चे हैं जिनका अपना अपना काम है। ये तीनों बच्चे अपने वालिद की तरह अकेले कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ मिलकर काम करते हैं। Dependent clause has 3 children, each with their own job. Like their father, they can't do anything alone and always work with the independent clause. 1. पहला बच्चा, noun clause। Noun clause, ये पहला बच्चा है जो बहुत ही वर्सटाइल है। ये जुमले में किसी भी नाउन इसम की जगह ले सकता है। This first child is very versatile. It can take the place of any noun in a sentence. मिसाल, मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या कहा। Example, I don't know what you said. यहाँ के तुमने क्या कहा इस जुमले में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। Here, what you said acts as the object in the sentence. 2. दूसरा बच्चा, adjective clause। Adjective clause, ये दूसरा बच्चा बहुत मददगार है। ये हमेशा किसी नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देता है। This second child is very helpful. It always gives more information about a noun. मिसाल, वो लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा दोस्त है। Example, the boy who is standing there is my friend. यहाँ जो वहाँ खड़ा है हमें लड़का के बारे में इजाफी मालूमात दे रहा है।
Here who is standing there gives us extra information about the boy. 3. तीसरा बच्चा, एडवर्ब क्लोज. एडवर्ब क्लोज, ये तीसरा बच्चा बहुत ज़हीन है. ये हमेशा बताता है कि कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ या कैसे हुआ. This third child is very clever. It always tells us when, where, why और how an action happened. मिसाल, हमने खेलना बंद कर दिया क्योंकि बारिश हो रही थी. Example, we stopped playing because it was raining. यहाँ क्योंकि बारिश हो रही थी, हमें ये बता रहा है कि खेलना बंद करने की वजह क्या थी. Here, because it was raining, tells us the reason for stopping playing. नतीजा कंक्लूजन. इस तरह जुमला एक बड़ा घर है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लोज मालिक है और डिपेंडेंट क्लोज का खानदान उन पर मुनहसिर है. सो अ सेंटेंस इज अ बिग हाउस where the independent clause is the owner and the dependent clause family is dependent on them. इन दोनों खानदानों के मिलने से ही एक मुकम्मल और खूबसूरत घर जुमला बनता है. Only when these two families come together does a complete and beautiful house, a sentence, get built. शिक क्लॉज. एक शक क्लॉज ग्रामर में एक ऐसी इकाई है जो एक फाइल, सब्जेक्ट और एक फेल प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होती है. अ क्लॉज इज अ यूनिट इन ग्रामर दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. फाइल वो शख्स, जगह या चीज है जिसके बारे में बात की जाती है. द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. फेल वो काम है जो फाइल करता है या जो कुछ इसके बारे में कहा जाता है. The predicate is the action the subject performs or what is said about it. एक शक खुद एक मुकम्मल जुमला भी हो सकती है या किसी बड़े जुमले का हिस्सा भी. A clause can be a complete sentence by itself or part of a larger sentence. शिक की अक़साम. Types of clauses. शिक की दो अहम अक़साम हैं. आज़ाद शक, independent clause और ज़ेरे कफ़ालत शक, dependent clause. There are two main types of clauses, independent clause and dependent clause. 1. आज़ाद शक, independent clause. ये वो शक है जो अकेले एक मुकम्मल जुमले के तौर पर खड़ी हो सकती है. This is a clause that can stand alone as a complete sentence. Formula आज़ाद शक equals file plus fail plus मुकम्मल बात. Independent clause equals subject plus predicate plus complete thought. English example. उर्दू ट्रांसलेशन. ही इज रीडिंग अ बुक. वो एक किताब पढ़ रहा है. ही इज द सब्जेक्ट एंड इज रीडिंग अ बुक इज द प्रेडिकेट. वो फाइल है और एक किताब पढ़ रहा है. फेल है. दे वेंट टू द मार्केट. वो बाजार गए थे. दे आर द सब्जेक्ट एंड वेंट टू द मार्केट इज द प्रेडिकेट. वो फाइल हैं और बाजार गए थे. फेल है. द कैट इज स्लीपिंग. बिल्ली सो रही है. शी स्माइल्ड एट मी. वो मुझ पर मुस्कुराई. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे हैं. माई फादर इज अ डॉक्टर. मेरे वालिद एक डॉक्टर हैं. द कार इज वेरी ओल्ड. गाड़ी बहुत पुरानी है. इट इज अ ब्यूटिफुल डे. ये एक खूबसूरत दिन है. वी आर गोइंग होम. हम घर जा रहे हैं. आई लाइक टू ईट पिज्जा. मुझे पिज्जा खाना पसंद है. 2. ज़ेरी किफ़ालत शक, डिपेंडेंट क्लॉज. ये वो शक है जो अकेले मुकम्मल जुमला नहीं बन सकती. This is a clause that cannot form a complete sentence by itself. उसे हमेशा किसी आज़ाद शक के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है. It is always used with an independent clause. Formula ज़ेरी कफ़ालत शक equals मातहत लफ्ज़ plus file plus field plus नामुकम्मल बात. Dependent clause equals subordinating word plus subject plus predicate plus incomplete thought. ये तीन इक़साम की होती हैं. इसमें शक, नाउन क्लॉज, सिफत शक, एडजेक्टिव क्लॉज और मफ़ऊल मुतलक शक, एडवर्बियल क्लॉज. इट हैज़ 3 types: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज.
फॉर्मूला याद रखने के लिए, टू रिमेंबर द फॉर्मूला. अ वाइट बस, एडवर्बियल क्लॉज, आफ्टर, while, how, if, though, even if, because, until, since, so that. Wet weaker, noun clause, what, who, which, where, when, how, ever, that, whether, if, cause. Vautha, adjective clause, who, whom, whose, that, as. English example. Urdu translation. Because he was ill, he didn't come. क्योंकि वो बीमार था, वो नहीं आया. Because he was ill is the dependent clause. क्योंकि वो बीमार था, ज़ेरी कफालत शक है. I bought the phone that you liked. मैंने वो फ़ोन खरीदा जो आपको पसंद था. That you liked is the dependent clause. जो आपको पसंद था, ज़ेरी कफालत शक है. I will help you whenever you need. जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. Although it was cold, we went outside. अगरचे सर्दी थी, हम बाहर गए. I don't know why she is crying. मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रही है. This is the house where I was born. ये वो घर है जहां मैं पैदा हुआ था. He talks as if he knows everything. वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब कुछ मालूम हो. She succeeded because she worked hard. वो कामयाब हुई क्योंकि उसने मेहनत की. You can do it if you try. तुम ये कर सकते हो अगर तुम कोशिश करो. He left after the rain stopped. बारिश रुकने के बाद वो चला गया.